Morning to all. First and foremost, I would like to extend a warm welcome to our chief guest, Mr. Mukesh Chaturvedi, Input Head of Dainik Jagran, Mr. Santosh Kumar Sharma, City in charge of Dainik Jagran, who graciously accepts our invitation to be with us this morning. Our respected Reverend Father Dr. Robert Verghese, our headmistress Ma'am Poonam Sharma, dear teachers and our very dear parents. But before we embark on this journey, I request Raima and Purnima to come forward and present the bouquet to our honorable chief guest. A deep connection between studies and writing. It is said that reading is necessary for writing. He is also a student and involved in writing. For him, somewhere, this is the support of survival. He is a writer. He started getting involved in writing along with his studies. His family atmosphere was literary. His father, bridge poet, late Suresh Chaturvedi, was associated with Akashvani. When he went to Akashvani Mathura, Agra and Delhi with his father, he got a chance to talk in Samachar Parikrama. Afterwards, his articles started getting published in some local newspaper in his home district, Hathras. His older brother, late Ramakant Chaturvedi, was also a journalist. His name was also discussed with pride in the journalism of Hathras and Aligarh. He held a senior position in Dainik Jagran for a long time. He always motivated him for writing.
Initially, he got a chance to work in Aaj newspaper in Agra. This is where his journey into journalism began. After some time, he got a place in Amar Ujala in Agra itself. He got a chance to leave from Agra and go to Chandigarh for 2.5 years. In Dainik Jagran, he worked from reporter to deputy news editor at various centers in Haryana and Rajasthan. And if you go somewhere, you have to return home. If necessary, that's why he also had to return in 2017. Since then, he is in Aligarh. Dainik Jagran, he is in Puthead. It's been 23 years since he started his journey as a journalist. Reading is still his hobby. Thank you, sir, for coming. Mr. Santosh Sharma, he is the city in charge of Dainik Jagran. He needs no introduction as he is not only the city in charge of Dainik Jagran but also the in charge of district. He has started his journalism career with Dainik Jagran. He was born in a farmer family in Hathras. He studied BSc from BSS College, Mathura. Due to his interest in writing, he chose journalism as his career and studied journalism. He had joined Dainik Jagran in 2008. He started with the crime beat from where he got noticed. In 2015, he became city in charge. He is the one who covers the activities of Aligarh Muslim University. All the news related to research happening in AMU is often read because of him. Under his leadership, the Jagran team actively participated in social issues. The campaign launched to clean Achal Sarovar became an example because of him. Due to Dainik Jagran campaign, Achal Sarovar is a shining today. Thank you, sir, for coming. Brightness and prosperity. As the sunlight dispels the darkness of night, may this light remove all the elements of darkness which are within us. To make this morning a blessed one, let's invoke the God's presence which can give us the ultimate light by kindling the lamp. I invite our highly regarded chief guest, Mr. Mukesh Chaturvedi in Puthead, Mr. Santosh Sharma, and our principal, Reverend Father Dr. Robert Varghese, Headmistress Ma'am Poonam Sharma, our teacher representative Ma'am Chama, to come forward and kindle the lamp. Dainik Jagran. Our principal, Father Dr. Robert Varghese, all dear parents, good morning, namaskar, and hearty welcome to all of you. Today is Expression Day, अभिव्यक्ति दिवस जिसे हिंदी में कहा जा सकता है. This is the day when these little kids are going to present a glimpse of their immense talent. They are trying to unleash their creativity. They are little packets full of energy
and all of you are eager to see them on this stage. But before that, दो बातें आप लोगों से. In our school, we aim to not to just impart knowledge to the students, but to inculcate them wisdom, compassion, and above all, humanity. And this is the most important thing they need to learn, because they are the future of this world. और ये बात बिल्कुल सच है कि बच्चे किताबों से कम सीखते हैं, आपसे और हमसे ज़्यादा सीखते हैं. अपने चारों तरफ के एम्बियंस से, अपने चारों तरफ के वातावरण से ज़्यादा सीखते हैं. So we all should be very, very careful about our behavior, our language, and everything. Whatever they see, they learn, and it will remain with them for the whole life. जो देख रहे हैं वही वो करना चाहते हैं, because you are the role model for them. So please, we means आप और हम दोनों, जब भी मैं बात कर रही हूँ तो हम दोनों ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो we should be more and more careful about everything we are going to present in front of them. आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और हमारा जो सम्मिलित प्रयास होगा वही हमारे स्कूल के मोटो तमसो माँ ज्योतिर्मय को सार्थक होगा. आज के टाइम में गुड पेरेंटिंग की बातें तो बहुत ज़्यादा की जाती हैं, और जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है. दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क टुडे, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज. आवर किड्स आर इन सर्च ऑफ फ्रेंड्स. वी शुड बी देयर फ्रेंड्स सो दैट they can share everything with us. And negativity should not be around them at any cost. Positivity, positive environment, it also helps to grow. And please enjoy, encourage them. They need your appreciation and encouragement. Your cooperation we also appreciate, and we need it forever. Thank you so much. Thank you. Very warm welcome to all of you. Welcome to the world of fun, world of prayers, world of songs, world of dance, and world of friends. We hope you will enjoy the program. Welcome, welcome. How do you do? We are glad to see all you. We are happy to see you here. We are happy to see you here. Happy, 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 happy. Oh, hello, Happy Ji. Control. What is the next program? Oh, next program is prayer dance. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु. डांस बाय UKG. थैंक यू.
कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। धरती से अंबर तुम ही तुम, धरती से अंबर तुम ही तुम, रंग रंग में लहराओ। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। चंद्र की रश्मि, ईश की ज्योति, पुलकित मेरी आत्मा होती। चंद्र की रश्मि, ईश की ज्योति, पुलकित मेरी आत्मा होती। तुम ही हो प्रभु पुष्प सुगंधम, जिसकी महिमा हर पल होती। अपनी दया से मुझको सजाओ, अपनी दया से मुझको सजाओ। मन का टूटा तार मिलाओ, मुझ में समा के मुझको उठाओ। द्वार खुला है प्रभु वर आओ। कौन बड़ा है तुमसे जगत में, तुम ही तुम ही तुम ही तुम्हें। सहता पर्वत वृक्ष में हो तुम ही तुम ही तुम ही तुम्हें। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। by LKG. Thank you. चोरी से छुप छुप के तिनका तिनका चुन के सब
जग जग के मैंने रातों को जग जग के तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। ला 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 सपने रे सपने मेरे ला ला ला। कितना अच्छा डांस करा है छोटे बच्चों ने। वाह। Mr. Mukesh Chaturvedi, input in charge of Dainik Jagran, to kindly come over to the dais and address all of us. प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब, सभी शिक्षक और सभी अभिभावक, सबको वंदन अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत है बहुत अद्भुत, अस्मरणीय, अद्वितीय, अकल्पनीय, बहुत छोटे छोटे बच्चों किस दिशा में और सपनों की दुनिया, सचमुच जो इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी दिशा मिले तो उनके सपनों को कौन रोक सकता है। वाकई में बसीर बद्र जी ने 2 लाइन लिखी, मुझे अभी बैठे बैठे याद आ रही थी। उड़ने दो इन परिंदों को शोक हवाओं में, उड़ने दो इन परिंदों को शोक हवाओं में, बचपन के ज़माने लौट के नहीं आते। बाकी में ये एक ऐसी पूंजी है जो हमारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बचपन से बड़ी पूंजी मुझे नहीं लगता दूसरी पूंजी कोई हो पाएगी। बचपन की ही यादें होती हैं जिन्हें हम अपनी उम्र के साथ सहेज कर रखते हैं, नहीं पाते। ये बचपन ही है जो एक नई दुनिया तय करता है, एक अपनी दिशा तय करता है, एक अपने सपने संजोता है और एक कुछ करना चाहता है। ये अलग बात है कि उनके सपनों में व्यवधान कोई ना बने। हम उनके सपने जो सोचें उनके सपनों तक पहुंचने दें, हम उनकी मदद करें। बहुत गौर से मैं देख रहा था जब बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो अपने अभिभावकों के कुछ बच्चों की दिशा थी, उनकी निगाह ऐसे खोज रही थी मेरे कौन बैठे हैं। वो इसलिए थी उन्हें संरक्षण की इंतजार है, उनके सपनों को संरक्षण चाहिए। दरअसल उनको नहीं चाहिए, वो तो है, ये दिशा वो तलाश लेंगे, उन्होंने संदेश दिया ही है। और निश्चित रूप से एक और चिंता आती है, साहब पढ़ाई से बहुत वो है, प्रेशर है, अब बच्चे हमारे कल्चरिक नहीं होते, अब बच्चे हमारे से नहीं जुड़ पाते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगा। मुझे लगता है उनकी दिशा अगर क्लियर है तो उनके सपने कहीं मुश्किल नहीं है। उनके सपने अभी भी खुले आसमान हैं, उनके सपने अभी भी पूरी कल्पनाओं में हैं, उनके सपने अभी भी उनकी झोली में हैं। बस हम उन्हें सपोर्ट करें, संजोने की मदद करें। वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, हम अपने सपने उन पर ना करें। मैं ऐसा नहीं हो पाया, इसे कर दो, मेरी समझ से तो थोड़ा मुझे अपने आप वैसा हो जाएगा। हम ये सोचें कि वो करना क्या चाहता है, हम उसे कर लेते हैं। शायद वो सपने हमारे सपने से बड़े सपने होंगे जो हमें नई दुनिया दिखाएंगे, हमें एक नई पहचान दिलाएंगे। मैं साधुवाद इस स्कूल मैनेजमेंट को इसलिए भी देता हूँ कि उन्होंने जितने मन से और जितने कार्यक्रम बनाया है उसका उद्देश्य केवल यही है कि यहाँ हर चीज़ कल्चर से लेकर एजुकेशन तक पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि ऐसी ही प्रस्तुतियों से हमें पता लगता है कि यहाँ माहौल कैसा है, यहाँ का है। एक अच्छे माहौल की जब शुरू में बात हो रही थी, मैडम ने कहा था कि अच्छा माहौल बहुत ज़रूरी है। नो डाउट बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि किसी संस्था पर या एक जगह पर डिपेंड हो जाए। वो यहाँ से लेकर वहाँ तक जाए। जिस माहौल में हम उसे रखना चाहते हैं वो माहौल देने की हमारी भी कोशिश हो। सपोर्ट हम सब कर रहे हैं, एक अच्छा माहौल बने। निश्चित रूप से हमारे सिद्धांत, हमारे उद्देश्य, हमारे सपने और जो उनके सपनों से जुड़े हैं, उनके सपनों से पूरा करने की जो हमारे वो है अभिलाषा है, निश्चित पूरी होगी। बहुत बहुत बधाई, इन बच्चों को बहुत शुभकामनाएं जो उन्होंने दिखाया, सोचा, समझा
वो बहुत इसी लेवल तक जाएं और छा जाएं। धन्यवाद। Reverend Father Dr. Robert Verghese to come up and propose a memento to our chief guest. टीवी और मोबाइल इन्होंने हमारे पर कब्जा कर लिया है। किसी के पास टाइम ही नहीं है, कोई को सुनता ही नहीं है, किसी को कुछ याद नहीं रहता। वेरी बैड हैबिट, नॉट गुड फॉर हेल्थ। इनसे तो जितना दूर है उतना ही अच्छा है। आइए लोगों से मिलते हैं जब हमारी बात अच्छी तरह समझ में आएगी। इसके बायू के जी थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये दो फैमिलीज की कहानी है, एक है चिंटू की तो दूसरी पिट्टू की। इन दोनों दोस्तों की फैमिलीज में क्या हो रहा है, आइए जरा देखते हैं। मम्मी मम्मी मैं स्कूल से आ गया, कहाँ हो आप? अरे आजा बेटा, मैं इधर ही हूँ, मूवी देख रही हूँ जरा। ओहो, फिर मूवी? ये तो मम्मी का रोज का काम है। मम्मी पता है आज मेरी क्लास में क्या हुआ? वो हमारी मैम है ना, आज उन्होंने। अभी नहीं चिंटू, अभी रुक जा, ये मूवी खत्म करके मैं तुझसे बात करती हूँ। ओके मम्मी, अब खाना तो दे दो। हाँ हाँ देती हूँ ना, पहले तू मुंह हाथ धोकर तो आजा। लो मम्मी, अब तो सब हो गया, लाओ खाना। अरे वो टेबल पर ही तो रखा है, प्लेट भी वही है, खा ले निकाल कर। ये पुलाव तो ठंडा हो गया है, चलो खा लेता हूँ। हाँ मम्मी सुनो ना, मैं बता रहा था कि आज हमारी क्लास में। अरे रुक जा बेटा, तेरे स्कूल की कहानी मैं बाद में सुनती हूँ ना, बस मूवी खत्म ही होने वाली है। हाँ अब बता क्या हुआ तेरे स्कूल? वो मम्मी आज हमारी मैम ने। अरे ये माला मुझे फोन क्यों कर रही है आज? हाँ माला, आज हमारी याद कैसे आ गई? अब मम्मी तो हो गई फोन में बिजी, मैं खेलने चला जाता हूँ। काश दादा दादी भी यहाँ होते तो वो मेरी बातें तो सुनते, वो भी गांव चले गए। ओके बाय मम्मी। आइए अब पिंटू की फैमिली को देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ। मम्मी मम्मी मैं स्कूल से आ गया। आओ बेटा, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? स्कूल में सब ठीक रहा ना? जी मम्मी, स्कूल में सब ठीक रहा। मम्मी पता है आज हमारी क्लास में क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ खास हुआ क्या? हाँ मम्मी, वो हमारी मैम है ना, उन्होंने मैथ्स का सरप्राइज टेस्ट लिया और मेरे फुल मार्क्स आए 10 आउट ऑफ 10। मैम ने बहुत तारीफ की और पूरी क्लास में मेरे लिए क्लैपिंग भी की। अरे वाह, शाबाश बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही गुड बॉय बनकर रहना। चलो हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ।
अरे रे, पहले खाना खा ले। और तुम्हारी फ्रेंड्स के कैसे मार्क्स आए हैं? चिंटू के भी अच्छे आए हैं, पर 10 में से 10 सिर्फ मेरे ही आए हैं। मैं रोज शाम को आपसे पढ़ता हूँ ना, इसलिए। पापा भी खुश होंगे ना मम्मी? हाँ बेटा, बहुत खुश होंगे। चलो खाना खाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर खेलने जाना। ओके मम्मी, फिर आग रात मेरे को कल वाली स्टोरी भी तो पूरी करनी है। हाँ हाँ बेटा, जरूर सुनाऊंगी, पर अभी रेस्ट करो और डिटेल में सुनाओ कि आज क्लास में क्या हुआ, ठीक है ना? जी मम्मी, बताता हूँ। हुआ ये कि जैसे ही मैथ्स वाली मैम क्लास में आई, तो देखा आपने, चिंटू और पिंटू के परिवार एक जैसे होते हुए भी कितने अलग हैं। हमें आशा नहीं बल्कि पक्का पक्का विश्वास है कि आप सबकी फैमिली पिंटू की फैमिली जैसी हैं। प्लीज ऐसे ही रहिए। बच्चों की बात धैर्य और ध्यान से सुनेंगे तो वह सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, और तब उन्हें सही गलत का फर्क समझाना हम सबके लिए आसान होगा ना? थैंक यू। वाह, कितना अच्छा मैसेज दिया इन लोगों ने। वाह वाह। Chief guest, Mr. Santosh Kumar Sharma, to kindly come up on the dais and address all of us. आदरणीय फादर लॉर्ड वर्गीस, मैडम पूनम शर्मा जी, विद्याराम शर्मा जी, अशोक अंजुम जी, और आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी अभिभावकगण। दरअसल जहाँ बच्चों का कार्यक्रम होता है वहाँ आप स्पीचलेस हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रस्तुति है, उनकी जो कल्पना है, उसे आप शब्दों में पूर्ण नहीं कर सकते। बच्चों में इस कार्यक्रम की खूबसूरती आप देख रहे होंगे शुरू से कि सारी कमान बच्चों ने ही संभाल रखी है। बच्चे ही प्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे हमें इवेंट को आगे बढ़ाना है, क्या बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया उसकी भी वो व्याख्या कर रहे हैं। तो ये एक खूबसूरती है आज के इस आयोजन की, इस पूरे समारोह की। उन बच्चों को मोटिवेशन किस तरह से मिल रहा है, आप खुद ही इसका आकलन करेंगे। देखिए, बच्चों का एक इस तरह से कहें कि बच्चे के उस एक वस्तु की तरह होते हैं जिसे आप मिला करके किसी सांचे में डालेंगे ना तो उसका रूप वही निकल के आएगा। ये इस उम्र के बच्चे हैं, इस पड़ाव पर हैं कि इन्हें अपने अच्छाई बुराई का कुछ पता नहीं है। जो शिक्षा उनको यहाँ मिलेगी, जो माहौल घर का मिलेगा पेरेंट्स से, वो उसी तरह से चलेंगे। अगर ये यहाँ पर इनको ब्रेक मिल गया ना, इनको कोई दिशा गलत मिल गई तो ये दिशाहीन हो जाएंगे। इसमें जिम्मेदारी केवल स्कूल की नहीं है, पेरेंट्स की भी है कि आपको देखिए, अभी बच्चों ने जो प्ले किया कि आपको चिंटू का फैमिली बनना है या पिंटू की बनना है, और ये मुझे लग रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये फील कर रहे होंगे कि निश्चित तौर पर जो बच्चों ने यहाँ अभी प्रेजेंट किया है, जो प्ले किया है, कहीं ना कहीं हम इसको रोज फील कर रहे होंगे। या तो जो बच्चे सुबह से शाम आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं तो मुझे लग मिला कि सारे फादर जा कर के बच्चों से पूछते होंगे शाम को जब आप कहा रहे था कि घर से काम से आते होंगे, तो निश्चित तौर पर मुझे लगा कि सारे पेरेंट्स पूछते होंगे कि बच्चा आज की क्लास कैसी रही, आज क्लास में क्या खास रहा,
आपकी बस में किसी बच्चे ने आपको परेशान तो नहीं किया? रास्ते में अंकल ने ड्राइव बस को ठीक किया था या ऐसे ही बहुत रफ चला रहे थे? ये देखिए, ये रूटीन है, ये बच्चों को अपने से जोड़ने का एक ये चैन है। आप इस चैन को मत तोड़िए, बच्चों से रोज बात करिए, चाहे छोटा बच्चा हो या आपका बड़ा बच्चा हो। ये जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, वो अपने मन की बात आपको नहीं बताएंगे। एक दिन आप पूछिए, हो सकता नहीं बताए, अगले दिन आप पूछेंगे न बताए, लेकिन एक दिन वो आपको जरूर बताएगा कि आप पापा मुझसे रोज पूछते हैं, मम्मी मुझसे रोज पूछती हैं कि कोई बात तो नहीं है। तो हो सकता है कि कोई बच्चा आपको बताए कि मम्मी मैं रोज जाता हूँ बस में बैठ करके, और एक बच्चा है वहाँ से बैठता है, वो मुझे बड़े पसंद करता है। तो देखिए, ये वो चीज़ है जिसे आप नहीं पता कर सकते। तो आप इसको मतलब ये चिंटू मिंटू की कहानी को आप कृपया करके अपने आज यहाँ से उतार के चलिए कि हम रोज बच्चों से बात जरूर करेंगे, उनको पूछेंगे कि खाना जो आपको लंच लेके गए थे वो आपने खाया, नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, क्लास का माहौल कहीं ऐसा खराब तो नहीं रहा आपकी वजह से। ये चीज़ें देखिए हमें नियमित करनी है। अभी बच्चों ने एक सपने की एक और आपको एक प्ले किया है। देखिए, सपने सब देखते हैं, एक रात में सपना देखना होता है, एक दिन में सपना देखना होता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो सपना दिन में देखे जाते हैं वो रात के सपने से बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि रात के सपने कल्पनाहीन होते हैं। आप केवल कल्पना में उनको जीते हैं और कुछ उनमें आपको याद रहेंगे, कुछ आप उनको भूल जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि देखिए, आपको सपना देखना है तो दिन में देखिए। आप सपना देखिए बच्चों को बेहतर माहौल देने का, उनको अच्छा पढ़ाने का, उनको अच्छा गाइड करने का। आप ऐसा सपना मत देखिए जिस सपने में आपका हित बच्चे के सपने में आप जोड़ दें, यानी कि आपकी कल्पना बच्चे के उस सपने में न जोड़ी जाए कि मेरा बच्चा IAS बन जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। सारे बच्चे अगर इंजीनियर, IAS, PCS और डॉक्टर ही बनेंगे तो बाकी बच्चे क्या बनेंगे? हमें तो समाज को लेके चलना है ना। हमें तो बच्चों को देखना है कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं। अरे आप ये देखिए कि आप सबसे बड़ा सपना देखिए कि मेरा बच्चा बस इतने मुकाम हासिल करे कि वो जीवन में हमेशा खुश रहे। इससे बड़ा सपना आपके लिए कोई नहीं हो सकता। आप अगर ये लेके चलेंगे तो देखिए, बच्चा भी आपका खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। अगर अपने सपने बच्चों को थोपेंगे तो हो सकता है कि आगे जाकर के आप अपना उस डिसीजन को गलत माने कि भाई मैंने जो सोचा था कि मेरा बच्चा पड़ोसी के बच्चे की तरह डॉक्टर बन जाए और वो नहीं बन पाया। अधर में जाके बच्चा उलझ गया कि अब मैं करूँ क्या, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो दूसरे फील्ड में था, वो तो आपने उसका ख़त्म कर दिया, उस तक तो आपने उसको पहुँचने नहीं दिया। तो वो करेगा क्या? फिर आप बच्चों को दोष देंगे सारा कि भाई बच्चा हमारा ऐसा निकल गया और ये तो कुछ करता ही नहीं है। लेकिन आपने बच्चे को ये करने के लिए मौका कहाँ दिया? आज का फादर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हम लोग यहाँ बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप लोगों के बीच में आकर के। और बच्चों का जहाँ कार्यक्रम होता है वो मतलब सुपर ही होते हैं। तो जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनको बहुत बहुत दैनिक जागरण परिवार की तरफ से उनको बधाई, उनके पेरेंट्स को। और जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए उनको और अच्छी तरह से बधाई कि वो अपना भी यहाँ करके प्ले करें। देखिए, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। जो मंच पर बच्चे खड़े थे, जो फ्रंट लाइन बच्चे हैं, आपका फोकस उधर ही होगा। कुछ बच्चे ऐसे थे पीछे वाले, है ना, तो आप उनको ये मत देखिए कि कल जाकर के आप अपने बच्चे से कहोगे ये तू तो ऐसे घूम रहा था। ऐसे मत कहना, बिल्कुल मत कहना। आप उससे कहना कि आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसा प्ले नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए कि उनके शामिल होने से इस मंच को जो खूबसूरती मिली है वो 4 बच्चे नहीं कर सकते थे। तो आप उस बच्चे से ये कतई मत कहना कि आपका प्ले बहुत ठीक नहीं रहा। आप कहना कि बेटा बहुत अच्छा किया। तो कल हो सकता है कि जो मैम आपकी और तैयार कराएंगे यहाँ पे, तो वो अगले वाले फ्रंट लाइन पर आपका बच्चे खड़ा हो। तो कृपा करके बच्चों को मोटिवेट करिए। आप उन पर अपने सपने मत थोपिए,
उनको ये मत देखिए कि जो हमने कर लिया वो हमारा नहीं कर पाए, वो बच्चा हमारा कर दे, कि ऐसा मत सोचिए। आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी आयोजकों को और जो टीचर्स हैं जिन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत इस प्रोग्राम को रंग दिया, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। Dance is the joy of movement and the heart of life. I love dancing. We love dancing. Let's call our little friend for a beautiful dance. Dance by LKG. Thank you. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 그런 선어해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 날 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일.
and a meticulous administrator. He leaves no stone unturned when it comes to the progress of this institution. Beside this, he is a storehouse of knowledge and experience which he imparts enthusiastically to the students and faculty. Father, this august gathering is keenly awaited to listen to you. Let's welcome our principal to the dais. Eminent personalities of Dainik Jagran family, Mr. Mukesh Chaturvedi and Mr. Santosh Sharma, Headmistress Mrs. Poonam, teachers, my dear parents, and beautiful and handsome children. Happy morning to all of you. First and foremost, I take this opportunity to thank God who has gifted all of you with such a lovely children, beautiful and handsome children, talented children. Secondly, I would like to thank our chief guests, Mr. Mukesh Chaturvedi and Santosh Sharma ji, for accepting our invitation to be the chief guest of this function. They both are from Hathras, and I had the privilege to work in St. Francis Inter College for 6 years as the principal. तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार के ही दो लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. And I take this opportunity to thank both of you for coming over here and also sharing your views and encouraging our students and the parents. I request all of you, on behalf of the Fidelian family, give a big round of applause and thank both of them for coming over here. I would like to thank Mrs. Poonam Sharma, headmistress of this Sadbhavana block. Under her leadership, teachers have worked very hard and students have performed very well. I request all of you to give a huge round of applause to Ma'am Mrs. Poonam Sharma. Our teachers have worked very hard. As you all know, dealing with one kid at home is so difficult. But these teachers have been handling 40, 45, 50 children in the class and preparing them for such a lovely function. It takes a lot of time, a lot of planning, and they have worked very hard. I request all of you to give a huge round of applause to the teachers who have worked very hard. The students of Sadbhavana block, they have put up one of the best shows of their life. LKG children, they presented the program for the first time on stage. If the first step is like this, what is going to be in the coming years? I request all of you to give a huge round of applause to the children and my appreciation. मेरा हिंदी उतना अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आज आप सबसे हिंदी में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा. Both English and Hindi mixed. I'm basically from Kerala, but I've been here for last 35 years in UP, but still no improvement in my Hindi. Education जो है, it has undergone a lot of improvement. सबसे पहले we had Gurukul Shiksha, which we call Education 1.0. उस समय केवल गुरु के पास knowledge होते थे, and students used to learn from them, from the teachers. Teacher was the only source of knowledge. इसके बाद आ गया Education 2.0.
वहां पर क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू किया और वहां पर थोड़ा चेंजेस आ गए। गुरुकुल सिस्टम से थोड़ा सा हट गए, बच्चे जो मशीन्स जो है उसको ऑपरेट करने के लिए सीखना शुरू कर दिया, नॉट ओनली फ्रॉम द गुरु बट एट द सेम टाइम उन्होंने भी अपना दिमाग लगा करके काम करना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। सो दैट वी कॉल इट एजुकेशन 2.0। उसके बाद आ गया एजुकेशन 3.0, जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ और कंप्यूटर स्टार्ट होने से बहुत चेंजेस आ गए। जो रिपीटेड वर्क्स जो होते थे वो लोग नहीं मशीन्स करने लगे, तो वहां पर बहुत चेंज आ गए। उस समय लोग सोचते थे आगे क्या होने वाला है। गुरुकुल शिक्षा जो है वो चेंज हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया, तो लोग सोचते थे उस समय अभी आगे क्या होने वाला है, अभी मशीन्स आना शुरू हो गया। तो फिर आ गया कंप्यूटर, तो एजुकेशन 3.0। जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो हम लोगों को मालूम है कि कहां कहां धरना प्रदर्शन होते थे और लोगों ने सोचा अभी क्या होने वाला है। फिर आ गया एजुकेशन 4.0, जो आज जो है जहां पर इंटरनेट है, www. आ गया। इंटरनेट आने से क्या चेंज हो गया, इधर पूरे एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ गया। और आगे हम सोच रहे हैं एजुकेशन 5.0 कुछ सालों के बाद क्या होने वाले। ये जो बच्चे जो आज जो यहाँ पर प्रस्तुति दी है, ये बच्चे व्हाट दे आर गोइंग टू बी, और 5 साल के बाद जो बच्चे जन्म होंगे और स्कूल में पढ़ने आएंगे वे किस प्रकार के बच्चे होंगे, उनका एजुकेशन किस प्रकार से होगा। क्योंकि इन छोटे बच्चों को जो एजुकेशन 4.0 अभी के जो बच्चे हैं, जो क्लास 3rd 4th तक का जो बच्चे हैं और जो बच्चे आने वाले हैं अभी 1-2 साल और, ये सब एजुकेशन 4.0 को है। ये लोग, इनको हम लोग एजुकेशनिस्ट डिजिटल नेटिव्स कहते हैं। इनके समय पूरा इंटरनेट मोबाइल सब स्टार्ट हुआ है। तो आने वाले समय एजुकेशन 5.0 में क्या होगा, जब इन बच्चों ने, मैं कल एडीए ब्लॉक में बच्चों को, पेरेंट्स को संबोधित करते मैंने बताया था, मेरा कुक का बच्चा 2.5 years old है। मैं सुबह 6:30 बजे जब नाश्ता तैयार कर रहे थे तो उस बच्चे एक बेडशीट में लेटा हुआ है, 2.5 years old, और ये मोबाइल ऐसे रख करके वीडियो सर्च कर रहा है। छोटा सा बच्चा, इनका माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है, छोटा सा एक एंड्रॉइड फोन है और ऐसे सर्च करने जा रहा हूँ। आई गॉट ए शॉक फॉर माई लाइफ। तो ये बच्चे क्या होने वाला है, एजुकेशन 5.0 आएगा तो क्या होने वाला है। अभी हम सब लोग परेशान हैं, टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, हम परेशान हैं क्योंकि एजुकेशन 4.0 में चल रहा है अभी, और इस 4.0 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डील करना बहुत मुश्किल है। हम सब लोग पढ़े हैं एजुकेशन 3.0 के हैं हम लोग। एजुकेशनिस्ट कहते हैं जो लोग 1965 और 79 में जो जन्म हुए हैं इनको एक्स जनरेशन कहते हैं। कितने लोग हैं इसमें? बोलना नहीं, हाथ उठाना नहीं, ठीक है। 65 और 77 के बीच में उसको एक्स जनरेशन कहते हैं। 1980 से 1994 तक जो लोग जन्म हुए हैं इनको वाई जनरेशन कहते हैं। कितने लोग हैं इसमें? इसका मतलब आप सब लोग वाई जनरेशन के हैं। इसके बाद 1995 से 2009 तक जन्म हुए हैं वे लोग इजेड जनरेशन के, जो आजकल हायर एजुकेशन कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं ये बच्चे इजेड जनरेशन के हैं। और 2010 और 2024 के बीच में जो जन्म हुआ है इन बच्चों को कहते हैं अल्फा जनरेशन कहते हैं। आपके बच्चे कौन से जनरेशन के हैं? अल्फा जनरेशन के। इनका पढ़ने का तरीका, इनका सोचने का तरीका हम लोगों से काफी डिफरेंट है। हमारे समय में
हमारे आंखों के सामने जब हम पढ़ते थे तो उस समय कंप्यूटर के बारे में हमें मालूम ही नहीं था, लेकिन हमारे सामने जब हम कॉलेज गए उस समय कंप्यूटर स्टार्ट हुए। उस समय हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इंटरनेट के बारे में। धीरे धीरे इंटरनेट, आप लोगों के समय धीरे धीरे इंटरनेट आ गया। ये जो कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये एक्स जनरेशन और वाई जनरेशन के बीच में हम लोगों ने इस डिफरेंस को देखा है, पढ़ा है बिना कंप्यूटर और इससे, लेकिन हमारे सामने ही दे स्टार्टेड कमिंग इन द मार्केट। जो बच्चे जो कॉलेज में हैं उनके समय, जो इसेड जनरेशन के हैं उनके समय कंप्यूटर्स, इंटरनेट सब स्टार्ट हुआ है। और ये बच्चे जो है अल्फा जनरेशन के बच्चे हैं, इनके समय पूरा का पूरा इंटरनेट सब चीजें आ गया है। और आने वाले समय ये बच्चे देखेंगे और दे विल बी द पीपल हु विल बी डीलिंग with the new gadgets and things coming up। तो 2-2.5 साल के बच्चे अगर वीडियो सर्च करना उनको आता है तो आप देख लीजिए क्या होने वाला है। Now for educators, हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम सब लोग पढ़े हैं एजुकेशन 3.0 और टीचर्स जो है वाई जनरेशन के हैं या एक्स जनरेशन के हैं। तो इस जनरेशन के बच्चों को सिखाने का अलग तरीका होता है, अलग तरीके से इनको सिखाना पड़ेगा। आप लोगों को मालूम है पहले जब हमारे समय में अरे पापा बुलाते इधर आओ तो बहुत प्यार से हम पहुंच जाते हैं, अभी इधर आइए तो उधर जाते हैं। नहाने के लिए हमारे समय आजा बेटा नहा ले तो हम लोग पानी में कूदते थे, जंप करते थे बहुत खुशी से। अभी आइए नहा लीजिए तो दौड़ते हैं। कितना जबरदस्ती पकड़ के नहाना पड़ता है इन बच्चों को, नहाने के लिए कितना तकलीफ आप लोगों को उठाना पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस। तो इन बच्चों को पढ़ाना, उन बच्चों को सिखाना, इन बच्चों को तैयारी कराना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इन बच्चों को जो एजुकेशन 4.0 के बच्चे हैं, अल्फा जनरेशन के बच्चे हैं, इन लोगों को सिखाने का तरीका हम अपने टीचर्स को हम दे रहे हैं। जब भी हमारा स्टाफ मीटिंग होता है उस समय मैं उन लोगों को समझाते हैं किस प्रकार से बच्चों को सिखाना चाहिए। इस जनरेशन इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग तो बिजनेस में, मैं तो जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं दुकान में बैठ जाऊंगा तो कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, लेकिन एजुकेशन के बारे में हम जानते हैं। हम 24 घंटे इस फील्ड में रहते हैं, तो हम लोग इस पर हम रिसर्च करते हैं और हमारे टीचर्स को हम तैयारी करा रहे हैं कि किस प्रकार से इन बच्चों को डील किया जाए। समय समय पर मैं टीचर्स को एड्रेस करके आधा घंटे का 1 घंटे का क्लास लेता हूँ और समझाते हैं। लेकिन आज मुझे भगवान ने मौका दिया आप लोगों से बात करने के लिए। आप इस प्रकार के बच्चों को कैसे डील करें, हमारा पुराना तरीका से नहीं चल सकता, वो आप लोग भी जानते हैं। ये एक बच्चे को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने घर पे, तो हम आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, मैं कुछ टिप्स आज आप लोगों को देना चाहूंगा। सबसे पहले सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बच्चों पे इन्वेस्ट करना होता है। आपका पैसा, आपका प्यार, आपका टाइम आप बच्चों को दे दें, क्योंकि इस जनरेशन के बच्चे पूरा गैजेट्स के जो दुनिया में जन्मे हैं ये बच्चे, तो उनके लिए उनका मार्गदर्शन, गाइडेंस के लिए आप लोग साथ रहना बहुत जरूरी है। सो इन्वेस्ट योर टाइम, योर मनी, योर लव ऑन चिल्ड्रन एंड दे विल गिव यू इन रिटर्न आफ्टर सम टाइम। पॉइंट नंबर 2, हम लोग, मुझे मालूम नहीं आप लोग कितने लोग हमारे स्कूल का डायरी पढ़े हैं। डायरी में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, हर एक साल हम उसमें चेंज लाते हैं, कुछ ना कुछ आज के समय के हिसाब से हम कुछ नियम, रूल्स रेगुलेशंस लेके आते हैं। आप लोग इसको पढ़ें और एनकरेज करें बच्चों को इसको फॉलो करने के लिए। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपके बच्चे जो इस जनरेशन को हम डील कर रहे हैं हमारे हाथ से निकल जाएगा। आज एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। एक लड़का है क्लास 11th का, आज की स्टोरी है,
today's fresh incident. कुछ दिन पहले there was some complaint against that boy और पेरेंट्स को फोन किया, मदर आ गई। तो मदर, हम लोगों ने, टीचर ने बहुत सारी शिकायतें 1 2 3 4 ये सब सुना है। तो मदर बोलती है, फादर ये लड़का तो फरिश्ता जैसे है मेरा, ये तो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, ये बहुत अच्छा है, जब में कुछ ये बोलता ही नहीं है घर पे, इतना प्यारा लड़का है। तो मैंने बोला ठीक है। आज क्या हुआ, आज सुबह आते ही फर्स्ट पीरियड से सो रहा है, क्लास में पूरा सो रहा है। टीचर ने बोला कि फादर ये सो रहा है तो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं गया, मैं उनका वीडियो ले लिया, तो फरिश्ता की वीडियो ले लिया मैंने। तो मुझे मालूम है, मैंने टीचर से बोला पेरेंट्स को बुलाना बेकार है, बिकॉज क्या बताओ, अगर आप सपोर्ट करोगे तो कैसे होगा। तो मैंने बच्चे को बताया, बेटा अगर आप थक गए हो, कल कोई शादी का फंक्शन या कहीं आप गए हो, यू टेक रेस्ट, गो एंड स्लीप एट होम। आप घर में, घर सोने का जगह है, आपका बेड है, आप वहां पर सो जाए। स्कूल यहाँ पर पढ़ने का जगह है। तो अगर आपको थकावट है, आपको सोने का मन, आप स्कूल मत आइए, यू स्टे एट होम, रिलैक्स, एंजॉय गुड हेल्थ। तो इधर दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है आपके बच्चे की भलाई के लिए है। सो फर्स्ट थिंग इज आप अपना टाइम दे दें बच्चों के लिए। पॉइंट नंबर 2, जो रूल्स रेगुलेशंस आदि है उसको आप लोग पढ़ें। और तीसरा, अगर आप इस बच्चे को आगे लेके आना हो, आप अकेले नहीं कर सकते, आप स्कूल के टीचर्स के साथ और आप लोगों का टाइम टू टाइम विजिट करके। कुछ पेरेंट्स जो है, कुछ थोड़ा बच्चा थोड़ा बड़ा होने पर फिर पीटीएम के लिए नहीं आते हैं। आप लोग ना केवल LKG UKG में, पर बच्चा क्लास 12th तक यहाँ पर है, हर एक पीटीएम में आना और टीचर से डिस्कस करना, मेरे बच्चे में क्या कमी है, कैसे सुधारूं, आदि बातें आप लोग को डिस्कस करना है। तो सब लोग मिलके ही आप इस दुनिया में, इस समय इन बच्चों को जो डिजिटल नेटिव्स है, इनको सब लोग मिलके ही आगे ले जा सकते हैं। आप लोग अकेले हो सकता है कुछ लोग ले सकते हैं, लेकिन सब लोग मिलके मेहनत करेंगे इस बच्चे के लिए, हम लोग आगे ले जा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, डियर पेरेंट्स, मैं ये 3 बातें मैंने आप लोगों को बताया, इसको मन में रख लीजिएगा। एंड टाइम टू टाइम वी विल कॉल फॉर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। मैं पेरेंट्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेता हूँ। जब भी आपको इन्विटेशन मिलता है आप लोग आइएगा। इट इज़ गुड टू रिफ्लेक्ट ऑन पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग, पॉजिटिव डिसिप्लिनिंग आदि के बारे में सब सुनना, इसके बारे में सोचना सब अच्छा होता है। इट्स ऑल फॉर योर बेनिफिट। सो काइंडली कोऑपरेट विद द स्कूल। एज आई सेड, ये बच्चे डिजिटल नेटिव्स हैं, तो आने वाले सत्र में हम लोग काफ़ी नई चीज़ें लेके आ रहे हैं हमारे स्कूल में। उदाहरण के लिए हम लोग सीनियर स्टूडेंट्स के लिए वैदिक मैथ्स ला रहे हैं, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि पर हम लोग लैब और बच्चों को जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके लिए एक ओपनिंग हम लोग कर रहे हैं। और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सारे नए प्रोग्राम्स हम लोग लेके आ रहे हैं। इसका सूचना आप लोग को आने वाले दिनों में आप लोगों को मिलेगा। प्लीज डू कोऑपरेट एंड ऑलवेज थिंक, आप लोगों को मैं पहली बार एड्रेस कर रहा हूँ, इसलिए मैं बताऊंगा, आप लोग पूरा का पूरा हम पर विश्वास कीजिए। हम लोग एजुकेशनिस्ट है, हमें कोई बिजनेस नहीं करना है, हमारा लक्ष्य यही है आप लोगों के बच्चे बहुत अच्छा बन जाएं, और उसी के लिए हम लोग 24 घंटा हमारा जीवन, मेरा जीवन भी इसी काम के लिए मैंने बलिदान किया हुआ है। सो प्लीज डू ट्रस्ट अस, प्लीज कोऑपरेट विद अस एंड टुगेदर वी विल टेक योर चाइल्ड टू ग्रेटर हाइट्स। वंस अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। Thank you, Father, for your words, overwhelmed with inspiration and knowledge. हम होली के रंग सजाएं, दिवाली के दिए जलाएं, ईद पे खूब सवैया खाएं, किस्मत पे भी धूम मचाएं, गुरु परम पर शब्द है गाते।
सबको सच्ची बात बताएं, हम हैं सच्चे हिंदुस्तानी। सबको सच्ची बात बताएं। डांस बाय यूकेजी, थैंक यू। रंगी परोड़ हवी खुशियों संगे लावी, हरे हाय हयो हाय हाय। रंगी परोड़ हवी खुशियों संगे लावी, हरे हाय हयो हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग छड़ जाते मन, हड़वे थे गुनगुनाए हाय हाय हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की लहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी। रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे और किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। ओ रंग रसिया हो। रंग बरसे हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। जोड़ी
I am David from UKG A1. You are our best supporters. Thank you so much. Have a good day. Bye. National anthem.